Good morning, student, and welcome to biology class. This is our second lecture on lesson number 1, reproduction in lower and higher plant. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन को एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट को, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. Flower consists of 4 different floral whorl, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Androecium is the male reproductive floral whorl. जैसा कि आप जानते हो, एक फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रीसियम एंड गाइनीसियम. इसमें से हमको डिस्कस करना है आज एंड्रीसियम को. Andrecium or a single unit of andrecium is called stamen, and stamen shows 3 distinct regions, that is filament, connective and anther. कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को लेकर. यहाँ देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. Immature anther is represented by a group of parenchymatous tissues. Immature anther, अभी मैच्योर नहीं हुआ है. ओके, एंड एंथर इज जनरली डायथिकस, मीन्स हैविंग 2 lobes. मीन्स इन डायथिकस एंथर the 4 pollen sacs are present. In each diathecous anther 4 pollen sacs are present, therefore it is called tetrasporangiate. जैसा कल भी हमने डिस्कस किया कि हमको एक्सटर्नली इमैच्योर एंथर डायथिकस बाइलोब दिखता है, और अगर हम इंटरनली उसको देखें, टीएस ऑफ एंथर को देखें, तो हर लोब के अंदर हमको 2 पोलन सैक्स दिखेंगे, एंड दैट मीन्स द एंथर इज इंटरनली टेट्रास्पोरेंजिएट, मीन्स हैविंग 4 पोलन सैक्स. एंड द नेक्स्ट थिंग, द heterogeneity means differentiation arise when some hypodermal cells get transformed into archisporial cells. ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है, इसके फॉर्मेशन के लिए या हाइपोडर्मल सेल क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म होकर आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाएंगे. ये हमारा रिवीजन था. अब हम स्टार्ट करेंगे टीएस ऑफ एंथर को. इट इज़ आवर टुडेज टॉपिक. नाउ फर्स्ट थिंग, the archisporial cells divide into an inner and outer inner sporogenous cells and outer primary parietal cells. Okay, inner sporogenous cells and outer primary parietal cells. अगर हम टीएस ऑफ एंथर देखते हैं तो हमको इसके अंदर 2 रीजन्स दिखेंगे, 2 अलग अलग सेल्स दिखेंगे. आउटर, दैट इज parietal cells, and inner sporogenous cells. Now sporogenous cells forms sporogenous tissue, and each cell of sporogenous tissue is capable to give rise microspore tetrad. जैसे आपको पता है, tetrad means having a structure, or the microspore having 4 cells, that is tetrad. Tetra means 4. Now the parietal cell undergoes डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स. आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है वो आउटर पैराइटल सेल्स में और इनर स्पोरोजेनस सेल्स में डिवाइड होते हैं. आउटर सेल ये एंथर वॉल लेयर्स फॉर्म करेंगे डिवाइड होकर, एंड इनर सेल्स ये एक्चुअल स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं जो कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने की. एंड the wall of mature anther consists of 4 layer. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो parietal cells है वो डिवीजन करते हैं outer parietal cells, और वो फॉर्म करेंगे anther wall. Anther wall it or mature anther shows, or it consists of 4 different layers. Now first one, that is epidermis. Look at here, the first one, that is epidermis. Second, that is endothecium. Third, that is middle layer, and fourth, that is tapetum. अब इसको समझने के लिए एक्चुअल हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को देखना पड़ेगा. नाउ लुक एट हियर,
ये आपका डायग्राम है, यहाँ देखिए TS of anther, TS of anther. TS of anther shows 4 distinct region outer epidermis, next to it that is endothecium, and next to it that is middle layer, and the fourth one that is tapetum. Now the first one, epidermis. Epidermis, it is the outermost protective layer, okay, and the second, ये जो epidermis है ये सबसे ऊपर की outermost layer है, और outermost के साथ इसका function क्या है, protective layer, and it is made up of tubular cells. Epidermis, outermost layer, protective in function, and it is made up of tubular cells, okay. Now next, ये first one हो गया हमारा. Next, that is endothecium. It is subepidermal layer. It is subepidermal layer, and it is made up of radially elongated cells with fibrous thickening. Endothecium ये epidermis के बाद वाली यानी सब epidermal layer है जो फॉर्म होती है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स से. रेडियली मीन्स सराउंडेडली अरेंज होते हैं सर्कुलर मैनर में, एंड इट इज़ द शेप ऑफ सेल इज़ इलोंगेटेड सेल एंड विच हैविंग फाइब्रस थिकनिंग, और इसकी क्या रहेगी, फाइब्रस थिकनिंग रहेगी. नेक्स्ट द थर्ड वन दैट इज़ मिडल लेयर, ओके. तीसरी जो लेयर है वो कौन सी है, मिडल लेयर. इट इज़ इनर टू द एंडोथेसियम. ये जो लेयर है एंडोथेसियम के नेक्स्ट रहेगी, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 1 to 2 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, ओके. मिडल लेयर कहाँ रहेगी, अगर हम आउटर से देखेंगे तो आउटर एपिडर्मिस, एंड नेक्स्ट टू इट दैट इज़ एंडोथेसियम, एंड नेक्स्ट टू इट दैट इज़ मिडल लेयर. मिडल लेयर it is made up of 1 to 2 thin walled cells layered, okay, and this cell may disintegrate in the mature anther. और इसके जो cells होते हैं middle layer के, जब anther mature होगा तब ये degenerate हो जाएंगे. Degenerate means disappear, और disappear at the time of maturity means it's having no function after the maturation of anther. Now the fourth one that is tapetum, okay, this one tapetum, that is fourth one. Now what is tapetum? It is innermost nutritive layer of anther wall. Tapetum ये सबसे innermost nutritive layer है anther wall की, means सबसे inner रहेगी, and it is immediately encloses the sporogenous tissue. यानी जैसे ही ये स्पोरोजेनस टिश्यू हम देखते हैं तो स्पोरोजेनस टिश्यू के सबसे क्लोज रिलेटेड जो वॉल रहेगी दैट इज़ टैपेटम रहेगी, ओके. टैपेटम इट इज़ मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिटिव? मीन्स इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनस tissue. And as you know, what is the function of sporogenous tissue? Sporogenous tissue are the tissue or the cells which undergo microsporogenesis and form microspores. ये जो sporogenous tissue है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये टैपेटम करता है, टैपेटम लेयर करती है, और टैपेटम लेयर इसको न्यूट्रिशन इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, these sporogenous tissue, okay, undergo division and they produce, undergo microsporogenesis and they produce microspores. Got it? यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है. वन क्वेश्चन इज़ देयर फॉर यू हियर. आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को एक्सप्लेन करना है, ओके. यानी स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे, आप फिगर को ड्रॉ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. नाउ अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं.
Microsporogenesis. Microsporogenesis means genesis means formation of microspore. माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. और माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट पोलन ग्रेन. ओके, पोलन ग्रेन, it is male initial cell by which the male gametes are formed. Now, the structure of microspore. Microspore or pollen grain, okay, it is non-motile, haploid unicellular body with a single nucleus. माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म टेट्रॉड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. जैसा कि आपको पता है कि मियोटिक जो डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या फॉर्म होंगे? हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे. हैप्लॉइड मीन्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ न्यूक्लियस. और जो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. यानी ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ रहेंगे? स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर रहेंगे, जो ट्रांसफॉर्म होकर एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे और ये डिवाइड होकर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, इट इज़ अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस. ओके, हर जो एक माइक्रोस्पोर रहेगा, ओके, मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा. इट्स हैविंग 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके, जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस रहेगा. देखिए, इट इज़ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विथ अ सिंगल न्यूक्लियस एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल. इसकी 2 लेयर की वॉल रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. ओके, यानी इसके अंदर 2 लेयर है, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज आउटर एंड इनर, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म, ठीक है. आउटर लेयर का नाम है एक्साइन, ओके, विच इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ओके, आउटर लेयर कैसी रहेगी? कॉम्प्लेक्स रहेगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगी. ये ऐसा सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं होता है. नॉन मीन्स नो, बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में डिग्रेड हो जाता है, नेचर में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाए. बट ये कैसी है लेयर? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये नेचर में डिसअपियर नहीं होगी क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. एंड द नेम ऑफ दिस आउटर layer, substance, that is sporopollenin, is a substance by which the outer layer of microspore is formed. Now, it may be smooth और with a sculptured pattern. ये कभी कभी स्मूथ रहेगी और कभी कभी इसके ऊपर क्या रहेंगे? स्कल्पचर्ड रहेंगे. मीन्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, स्पाइन लाइक. स्मूथ जो विंड पॉलिनेशन रहेगा उसके अंदर स्मूथ रहेगी. आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, तब आपको समझ आएगा. और स्कल्पचर्ड पैटर्न या स्पाइंस उन केस में रहेंगे, उन पोलन ग्रेन्स में रहेंगे जहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा. ये स्पाइंस उनके साथ अटैच हो जाएंगे. नाउ इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, यानी एक्चुअल जो पोलन ग्रेन का आउटर वॉल है, आउटर लेयर है एक्साइन, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बना है और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल है. एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स. ओके, एंड एट सम प्लेसेस द एक्साइन इज वेरी थिन, शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर. अब ये कुछ एरियाज में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एरिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, दिस इज थिन एरिया एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज जर्म पोर. यानी इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक स्पोर के अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर हमको 3 एरियाज दिखते हैं. जितने भी एंजियोस्पर्म्स
से रिलेटेड पोलन ग्रेन्स है वो जनरली ट्राइपोरिएट रहेंगे, मीन्स प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म पोर, या फिर समटाइम्स वो यूनिपोरिएट होगा पोलन ग्रेन। नाउ these are the meant for the growth of pollen tube or emerging pollen tube during germination of pollen grain। और ये जो sections है, germ pores है, सॉरी स्टूडेंट, ये जो germ pores है, ये germ pores एक्चुअल पोलन ट्यूब फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मीन्स these are the meant for growth of emerging pollen tube during the germination of pollen grain। And now the inner wall layer of pollen grain is called intine। It consists of cellulose and pectin। These are the two substances by which the intine or inner wall of pollen grain is formed। ओके थोड़ा सा रिवाइज कीजिए माइंड को। अभी हमने डिस्कस किया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन। ओके, और पोलन ग्रेन को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को भी डिस्कस किया। इट इज़ 2 लेयर्ड वॉल्ड, ओके, और इट इज़ सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल्ड एंड विथ अ सिंगल न्यूक्लियस। outer that is exine, okay, and inner is intine। अब आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, why pollen grains can remain well preserved as fossils। कि पोलन ग्रेन को हम ऐसे क्यों कहते हैं कि ये प्रिजर्व होते हैं लाइक अ फॉसिल्स से, या फॉसिल से हम इसको रिलेट करते हैं। नाउ आपको पता है व्हाट आर फॉसिल्स। दीज आर द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स which were present in previous eras, epochs, etc। हम पोलन ग्रेन को एज ए फॉसिल क्यों कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर आपको इसी प्यारा में मिलेगा। हमने 2-3 वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। लुक एट हियर, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको कॉपी करना है। ओके, द आउटर लेयर एक्साइन इज अ थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। ओके, फर्स्ट थिंग, जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की एक्साइन, वो थिक होती है और एक कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से वो फॉर्म होती है। सेकेंड थिंग, इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, और ये जो वॉल है अगेन रेजिस्ट करती है केमिकल्स को। इसीलिए मीन्स दिस इज द रीज़न वाई, reason of this question, that is why pollen grains can remain well preserved as fossils। कि पोलन ग्रेन फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व होते हैं, इसका आंसर है कि इसकी आउटर जो लेयर है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है और जो रेजिस्ट करता है डिफरेंट केमिकल्स को। ओके स्टूडेंट, नाउ अब okay student, now is our next topic is, that is, look at here, development of male gametophyte। बहुत ही important topic है development of male gametophyte। इससे पहले या अभी जो हमने डिस्कस किया वो था सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन को लेकर। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन अगेन डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। मीन्स दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, लुक एट हियर, द पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन, it is the beginning or it marks the beginning of male gametophyte। it undergo 2 mitotic division। अभी मैं कह रहा हूँ mitotic division, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में meiotic division को लेकर। ओके, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल meiotic division करके माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करते हैं और उस माइक्रोस्पोर टेट्राड से
development of male gametophyte. Okay, now the pollen grain that is marks the beginning of male gametophyte and it undergoes first mitotic division. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस टॉपिक में MMC वो मियोटिक डिवीजन करता है और माइक्रोस्पोर टेट्रैड फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर टेट्रैड से एक्चुअल में एक सिंगल सेल वो माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा और इस माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो यहाँ पर दो माइटोटिक डिवीजन होंगे। ओके, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड एंड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल जनरेटिव सेल। अभी जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि एक जो पोलन ग्रेन है, ओके लुक एट हियर, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पोलन ग्रेन एक्चुअल फॉर्म हुआ MMC से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ड्यू टू मियोटिक डिवीजन एंड माइक्रोस्पोर टेट्रैड फॉर्म हुआ। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। ओके, इसके लिए इसमें दो डिविजन्स होंगे। द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, यहाँ देखिए आप, इस डिवीजन के बाद एक्चुअल इसके अंदर दो सेल्स फॉर्म होंगे। एक रहेगा जनरेटिव सेल, लुक एट हियर, दिस इज जनरेटिव सेल एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल। ओके, दो सेल फॉर्म होंगे, एक सेल जनरेटिव सेल रहेगा, दूसरा वेजिटेटिव। ये जो जनरेटिव सेल है, ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये फॉर्म होगा एंड इट इज, लुक एट हियर, इट प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर ये जो बिगर हमको दिख रहा है दैट इज वेजिटेटिव सेल है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द कंप्लीट साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है दैट इज ये वेजिटेटिव सेल है। दूसरा जो सेल फॉर्म होगा दैट इज स्मॉल थिन वॉल्ड जनरेटिव सेल। ओके, छोटा सा सेल रहेगा दैट इज जनरेटिव सेल। आप यहाँ देख सकते हैं इतना छोटा सा सेल, ये एक्चुअल जनरेटिव सेल है। एक सेल के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, ओके, पोलन ग्रेन के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद दो सेल्स बनेंगे, छोटा जनरेटिव सेल और बड़ा वेजिटेटिव सेल। नाउ द वेजिटेटिव सेल इज अ रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड रहेगा एंड इसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो इरेगुलर शेप का और लार्ज रहेगा। एंड द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी जब इस पोलन ग्रेन से, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो इसके अंदर दो सेल फॉर्म होते हैं, एक बड़ा वाला बिगर नेकेड जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल रहेगा और उसके अंदर एक छोटा सा सेल फॉर्म होगा दैट इज जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल हमको दिख रहा है ये एक्चुअल फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस दिख रहा है हमको, बड़ा वाला ये न्यूक्लियस है। ओके, जनरेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल हमको दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये एक्चुअल जनरेटिव सेल और न्यूक्लियस का ये छोटा सा सेल है। सेल वॉल भी दिख रही है हमको, दिस इज़ द सेल वॉल और दिस इज़ न्यूक्लियस। ये दोनों एक्चुअल फ्लोट कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंसर्न विथ द जनरेटिव सेल ओनली। पहला जो मियोटिक डिवीजन था, यहाँ देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन का डिवीजन था। पोलन ग्रेन के पहले डिवीजन के बाद दो सेल फॉर्म होंगे दैट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, बट in the second meiotic division, okay, it is concerned with generative cell only। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन रहेगा, यहाँ देखिए आप, ये सिर्फ एक्चुअल जनरेटिव सेल को लेकर ही होगा।
मीन्स जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक यहाँ पर हो चुका है एंड सेकेंड माइटोटिक ये वाला जो एक्चुअल जनरेटिव सेल में ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग, and give rise to, look at here, and give rise to two non-motile male gamete। यानी जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, इस सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट फॉर्म करता है। ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ये जो सेल है पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एक्चुअल में नॉन मोटाइल ही होता है। वही अगेन नॉन मोटाइल, लुक एट हियर, नॉन मोटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूविंग, not moving, okay, and the mitotic division of generative cell takes place either in pollen grain or in the pollen tube, okay। अब जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, ये माइटोटिक डिवीजन या तो पोलन ग्रेन में होगा, इस तरह से फिगर डी में हमको क्लियर दिख रहा है कि ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो रहा है, नहीं तो आप इस फिगर एफ में देखेंगे ये सेल को छोड़कर डायरेक्टली कहाँ पर हो रहा है? पोलन ट्यूब में। यानी एक चीज़ अब हमको क्लियर करनी है कि जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होगा तो उसके अंदर दो माइटोटिक डिवीजन होंगे। पहला माइटोटिक डिवीजन दो सेल फॉर्म करेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव, इस तरह से, ओके। और दूसरा माइटोटिक डिवीजन ये या तो सेल में होगा या फिर एक्चुअल में ये पोलन ट्यूब में होगा, बट इट इज़ कंसर्न्ड विथ द जनरेटिव सेल ओनली। इसके अंदर वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं रहेगा, वो डिवाइड नहीं होंगे, सिंपली और ओनली एक्चुअल में जनरेटिव सेल डिवाइड होगा। और जैसे आपको पता है सेल डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फाइनली लुक एट हियर, ओके, द पोलन ग्रेन्स are shed from the anther at this two-celled stage in most of the angiosperm। जब भी हम पोलन ग्रेन को डिस्कस करेंगे तो पोलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम डिस्कस करेंगे, तो मेल गैमेटोफाइट के लिए जब इसका दो माइटोटिक डिवीजन होगा तो इस कंडीशन वाला पोलन ग्रेन एक्चुअल क्या होगा? शेड होगा या ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन है, शेड है, ये एक्चुअल एंजियोस्पर्म्स में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में इसी तरह से रहेगा, ओके। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नाउ डियर स्टूडेंट, हम एक बार रिवाइज करेंगे कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने डिस्कस किया, पहला जो हमारा टॉपिक था टीएस ऑफ एंथर, ओके, टीएस ऑफ एंथर, दैट इज़ दिस वन, टीएस ऑफ एंथर को लेकर हमने डिस्कस किया था। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोला है आपको, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आप इसको अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और आंसर भी। नाउ सेकंड टॉपिक जो हमारा इसके बाद था वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। इसको लेकर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर यानी जो भी पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, वो कैसे फॉर्म होगा और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। एंड आपके लिए एक और थर्ड क्वेश्चन रहेगा, दिस वन आपको लिखना है कि वाई पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कुछ आपको अगर क्यूरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।